after an extremely successful event जहाँ पे 250 से भी ज्यादा लोगों ने लास्ट टाइम हमारा वेबिनार अटेंड किया था, and we have 250 plus participants in our previous webinar. We, Urban Space Reality and Collide Corporation, in association with Reek Parivar and Rotary Club of Mumbai Kandivali West, would really thank you for your support and love. दोस्तों, जो लास्ट सेशन में नहीं आए थे और जिनको हमारा सेशन देखना है वापस, उनके लिए हम चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रहे हैं. So after this session ends, or whenever tomorrow or day after, you can see our videos, or you can also see the same link that is on our YouTube page, Urban Space Reality के नाम से. Friends, really thankful for your support, and we have a few people who had participated last time as well. उन सब की रिक्वेस्ट और भावना जी की रिक्वेस्ट से, जो प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब है, we have with us Rotary Club of Kandivali West की president Bhavna ji. I would like to hand over to her and would like her to ask ki how did she feel after the last yoga session. Mihir, over to Bhavna ji. Hello, Mihir. Yeah. Bhavna ji, so last session attend करने के बाद how did you feel, and what was the response from everyone? Yeah, first of all, a lovely morning to all of you कि आप सब लोग ने सैटरडे आके, और लास्ट टाइम भी हमको पता है कि 250 से ज्यादा लोग हो गए थे, और सच पूछिए तो ये सबके फीडबैक और सबकी डिमांड से ही मैंने रिक्वेस्ट किया था मितेश भाई को कि एक बार फिर से करवाए. जैसे देखा ही था कि लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छी योग की क्रियाएं करवाई थी, और आज भी मुझे पता है कि वो काफी प्रिपरेशन करके आए, कुछ हटके लेके आए हैं हमारे लिए. पर ये मेरी पर्सनल गुजारिश रहेगी मितेश भाई से कि भाई अगर आप हो सके तो रोज करवाइए. देख लीजिए होता है कि नहीं. सो यस, वंस अगेन वी लुक फॉरवर्ड कि आज भी बहुत एक अच्छा सेशन होने वाला है. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Bhavna ji, for your kind words. Guys, हम डेफिनेटली ये सेशन रोज करेंगे इफ वी गेट सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल. हम रजिस्ट्रेशन लिंक भी एट द एंड ऑफ द डे डाल देंगे. अगर ज्यादा लोग रजिस्टर होते हैं तो वील मेक श्योर कि हम ये प्रैक्टिस रेगुलरली करें और नितेश भाई आपको रेगुलरली योगा सिखाते रहे. वी हैव अनदर पर्सन विद अस, जो सेक्रेटरी ऑफ रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली के है, मिस्टर कल्पेश वालिया. Mir, let's hear it from Kalpesh bhai. Kalpesh bhai is not online right now, I think. Okay, so unfortunately Kalpesh bhai, I guess we will take his feedback from at the end of the session. No problem. So I guess Kalpesh bhai नहीं है हमारे साथ. So without wasting more of time, I think Kalpesh bhai just joined. Let's put him. Okay. Kalpesh bhai, good morning. Good morning. Kalpesh bhai, so how did you feel? આની પહેલાનો સેશન હતો તો કેવું ફીલ થયું યોગાના વારામાં? मैं एक જ આન્સર છે બધી વસ્તુનો કે અમે બહુ એગ્રેસિવલી બીજા સેશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એટલે મતલબ કે આગળના સેશનમાં અમને બહુ મજા આવી. કલ્પેશ ભાઈ, લોકોની રિક્વેસ્ટ છે કે હિન્દીમાં તમે કન્વર્સ કરો. ઓકે, સોરી. ઓકે, यस. उसका एक ही आंसर है मेरे हिसाब से कि वी आर एग्रेसिवली वेटिंग फॉर द सेकंड सेशन फ्रॉम मितेश भाई. उसका मतलब है हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड बिकॉज वी नो वेरी वेल मितेश भाई इज अवर फ्रेंड. तो कोई दोस्त के पास से कोई चीज अच्छा सीखने को मिलता है ना, तो वो कोई भी अच्छे गुरु या अच्छे ट्रेनर के मुकाबले काफी अच्छी से अपन ग्रेस्पिंग कर सकते हैं. तो दूसरा चीज, कोई भी कंफ्यूजन है तो बिंदास कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं. And it is a very nice session by Mitesh bhai and very informative and very softly explaining everything. बहुत अच्छा लगा कि ऐसा चीज हम लोग को हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे एसोसिएशन के रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली के प्लेटफॉर्म पे ऐसा चीज हमको करने को मिला. वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट. थैंक यू. कल्पेश वालिया, सेक्रेटरी ऑफ REEC. Thank you, Kalpesh bhai, for your kind words. So guys, without wasting more of time, let us start with our energetic, powerful and
energetic yoga session for today. So let us introduce Mitesh Bhai, our yoga guru for today, and let's hand it over to him. Hello. Yes, Me? Mitesh. Yes, Mitesh Bhai, Me? you're audible. I'm audible? Yes, yes, yes. Yes, yes. Yeah, okay. Good morning, everyone. Thank you very much once again for joining this second webinar. Thank you to Bhavna, President of Rotary. Thank you to Kalpesh Walia, रीत परिवार के सेक्रेटरी, और बहुत सारे लोगों का धन्यवाद जिनकी रिक्वेस्ट की वजह से इंस्पिरेशन मिला है सेकंड सेशन करने के लिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने आसन किए थे वो बैठ के करने वाले कुछ आसन थे। इस समय जो आसन करेंगे थोड़ा सा चेंजेस मैंने किए हैं। स्टैंडिंग आसन से क्या होता है कि बॉडी का वेट कम होता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्टैंडिंग आसन में वेट लॉस करने के लिए। मैं लास्ट टाइम की कुछ इंस्ट्रक्शन फटाफट दे दूंगा, उसके बाद में सेशन चालू करेंगे कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही आपको करना है। अगर मैंने 20 काउंट दिया, आप 5 काउंट में थकते हो, आप मत कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। स्ट्रेचिंग भी उतना ही करें जितना आपसे बन पाता है। जबरदस्ती वाला स्ट्रेचिंग मत करें। चेहरे के ऊपर खुशी, आनंद होना चाहिए आसन के समय, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। एक दिन में सब करने की चेष्टा करोगे तो कोई स्नायु में मचक आ सकती है। बीच बीच में आपको जरूरत पड़े तो पानी भी पी लीजिएगा। और योग करने से मैं वापस एक बार कहता हूं कि समग्र बॉडी को, आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिमेंडस बेनिफिट मिलता है। तो योग करना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली ये कोविड जैसे इंसिडेंट जो अभी जो बनी है घटना, तो उसमें आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ योगा है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए 3 बार ओमकार से शुरुआत करेंगे। पहले मैं आसन करूंगा, डेमो दूंगा, उसके बाद आपको करना है। उस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं। 3 बार ओमकार से बैठ जाए, सीधे बैठे, कमर को झुकाए मत, इस तरह से सीधे बैठे स्ट्रेट, और आंखें बंद, चेहरे के ऊपर हल्का हल्का सा स्मित। 3 बार श्वास ले छोड़े पहले, लंबी गहरी श्वास बनने के बाद 3 बार ओमकार पूरा। पूरा पूरा गुरु ब्रह्मा प्रार्थना बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। ओम। अगर आप पद्मासन में बैठे हो तो पद्मासन खोल दीजिए और दोनों पैर थोड़ा सीधा कर दीजिए। थोड़ा पैरों को इस तरह से दबा दीजिए नीचे की ओर। दोनों पैर के पंजे और उंगलियों को अपनी ओर खींचिए। मेरे साथ में कीजिए। डाउन, रेचक के साथ, पूरब के साथ अप, रेचक के साथ डाउन, पूरब के साथ अप। लास्ट टाइम ये सब मैंने सूक्ष्म क्रियाएं करवाई थी। इस समय दूसरी क्रिया करेंगे। खाली थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद खड़े होकर करने वाले आसन की ओर चलना है। लास्ट टाइम डाउन एंड अप। यहां से रोटेशन कीजिए। 1, गोलाकार में घुमाइए पैरों को, 2, 3 और 4। दूसरी ओर से 1, 2, 3
और 4। अब यहाँ से सब लोग खड़े हो जाए और आज जो मैंने बताया कुछ क्रिया करेंगे जिससे आपका वेट लॉस Karan, हो। please adjust the बहुत सारे video. लोग बोलते कि मुझे Karan, just 1 second, Karan. या कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में करना है। तो वेट कंट्रोल में लाने के लिए फास्ट क्रियाएं करना बहुत ही जरूरी है। Just wait for a moment. Karan, video There's has some been problem. disconnected. Just, yeah, it's live. Yeah. So can I go Yes, ahead? please go ahead. It's fine. Okay, done. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप स्टैंडिंग आसन के साथ क्रिया करते हो तो आपका वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैं क्रिया करवाऊंगा आपको, वो क्रिया आप शायद हर क्रिया मेरे नंबर तक नहीं कर पाएंगे, मगर आप कोशिश जरूर कीजिएगा ये सब क्रिया करने की, जिसकी वजह से आपके शरीर से थोड़ा पसीना निकले और साथ साथ में कैलोरी जलती है तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। तो सबसे पहले क्रिया करेंगे हम लोग, दोनों पैरों को इस तरह से रखना है जैसे स्कीपिंग, आपके पास डोरी होती है, स्कीपिंग रोप जो होता है उसमें आप डोरी कूदते हो, ऐसे ही आपको डोरी से कूदना है, मगर इमेजिनरी आपके हाथ में डोरी है, शोल्डर की मूवमेंट होनी चाहिए। और मैं आपको 30 काउंट्स दूंगा, 30 काउंट्स, मगर अगर आप 10 काउंट में थक जाते हो, 10 काउंट में करेंगे तो सब लोग साथ में करेंगे इस तरह से। देखिए अपनी जगह पे खड़े देखे, 1 2 3 4 स्टार्ट करें। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ओम। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। ये क्रिया करने से सुबह में जो नींद से हम उठ के आते हैं तो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी कमजोर होती है, मतलब एनर्जी कम होती है। यहाँ से एनर्जी भरने के बाद आसन करने में मजा आता है। जो लोग को हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग जंपिंग ज्यादा ना करें, जिसको नीज का बहुत ज्यादा अभी कुछ ऑपरेशन किया है वो भी ना करें। चलो वापस एक बार 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम। रिलैक्स। हर क्रिया में थोड़ी श्वास फूलेगी सुबह सुबह में, तो ये क्रिया 150 टाइम करनी चाहिए आपको, 150 टाइम, धीरे धीरे अभ्यास करके। आज मैं नहीं कराऊंगा, नहीं तो फिर आप दूसरा कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, यहाँ से दूसरी क्रिया की ओर चलते हैं। देखिए सीधे खड़ा रहना है। ये सब रोज आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, 5 काउंट, 10 काउंट, 15 काउंट, 25 काउंट। देखिए अभ्यास बढ़ेगा, आपका शरीर बेहतरीन होते जाएगा। देखिए इस तरह से करना है। पहले देखिए स्मॉल डेमो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब दोनों पैरों को खोलना है, साथ में ऊपर ताली बजानी है। करेंगे क्रिया, 20 काउंट में कराता हूं, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओम। रिलैक्स, श्वास को नॉर्मल होने दीजिए। ये भी अगर आप अभ्यास करोगे तो 40 बार कम से कम एक राउंड करना चाहिए। धीरे धीरे 1 महीने के बाद करो, 2 महीने के बाद, मगर 40 काउंट्स के 2 राउंड कम से कम रोज करने चाहिए। और स्कीपिंग के 150 काउंट्स नॉन स्टॉप मिनिमम करेंगे। और एक, सब लोग रेडी है? चले वापस एक बार, रेडी हो जाए, जंपिंग जैक, दोनों हाथ, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. सुबह में नींद उठने के बाद जैसे मैंने बताया, ये सब थोड़ी फास्ट क्रिया करते हो तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, हार्ट बीट्स थोड़े बढ़ते हैं, पंपिंग बढ़ता है हार्ट का, और शरीर तैयार होता है, मन तैयार होता है अगले आसनों के लिए। और 1-2 क्रिया करेंगे, उसके बाद में आसन की ओर चलेंगे। लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन था मुझे कि मेरा लेग स्ट्रेचिंग बढ़ाना है। लेग स्ट्रेचिंग बढ़ाने से हर आसन अच्छा हो जाएगा, इसलिए 2-3 जो क्रियाएं बताता हूँ उसमें भी स्ट्रेचिंग है, तो आपको पता चलेगा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। रोज ये क्रिया जरूर करें कि ये पैर मेरा पीछे, यहाँ से खाली मूवमेंट करनी है पैर की। देखिए एक बार, अप डाउन, अप डाउन, मतलब पैर को सीधा रखते हुए ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट करिए। आप दीवार का सहारा लीजिए, दीवार के पास रहिए और शुरू करेंगे मेरे साथ। 10 काउंट तक राइट फुट से आपको मूवमेंट करनी है, अप एंड डाउन की करेंगे। ये खाली क्रिया है, करेंगे पूरा। अप डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम। चेंज कर दें खाली पोजीशन को। अब मेरा लेफ्ट फुट उठेगा, 10 बार करेंगे, चाहे कोई भी पैर से शुरुआत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वापस एक बार करेंगे। अप 1, 2, 3, पैर सीधा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओम। ये कम से कम 20 बार आपको करना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। ओके, ये फ्रंट लेग्स को स्ट्रेच किया था। अब साइड में आप दीवार को इस तरह से हाथ का सपोर्ट दे सकते हो, और यहाँ से आप देखिए मूवमेंट, पैर को सीधा रखते हुए आप थोड़ा ऊपर उठाओगे तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा स्विंग होना चाहिए, जितना भी करोगे धीरे धीरे आपका स्विंग बढ़ेगा। तो देखिए करेंगे, एक बार एक डेमो देता हूँ। 1, 2, 3, पैर सीधा है और स्विंग हो रहा है। 10 काउंट करेंगे। राइट फुट से मैं कर रहा हूँ। एवरीबॉडी रेडी? स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Off. चेंज। आप 5 काउंट में थकते हो, 5 ही काउंट करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। लेफ्ट साइड से मैं कर रहा हूँ। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओम। रिलैक्स। पसीना पहुंच सकते हो आप, थोड़ा पानी भी ले सकते हो बीच बीच में। रिलैक्स। रेडी। सिर्फ 4 बार मूवमेंट करेंगे। 3 एक्सरसाइज रोज कीजिएगा, ताकि आपके पैर में जो स्नायु की जकड़न है, घुटने में दर्द होता है, सब निकल जाएंगे। तो रोज ये रोज थोड़ा थोड़ा आप अपनी कैपेसिटी अनुसार अभ्यास कीजिए। अब देखिए दोनों हाथ वॉल के ऊपर है। छोटा सा डेमो, बैकवर्ड स्ट्रेचिंग है लेग का। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 ही काउंट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो लेफ्ट फुट से दोनों हाथ इस तरह से वॉल के ऊपर आ जाए, और 1, 2, 3 and 4. ओम। चेंज। राइट फुट से 1, 2, 3 and 4.
ओम। अब मैं बताऊंगा कि ये जो हम स्ट्रेचिंग करते रहे उसका बेनिफिट क्या मिलता है। जो किसी का पैर ज्यादा स्ट्रेच होता ही नहीं है, एक छोटा सा आपको डेमो दूंगा अभी, कि जिससे आपको पता चले, खाली आपको करना नहीं है, रोज अभ्यास करना है मगर थोड़ा थोड़ा। ये डेमो, ये स्ट्रेचिंग बढ़ने से क्या फायदा होता है आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने ये जो स्ट्रेचिंग किया मैं रोज करता हूँ, जिसकी बदौलत मेरा लेफ्ट फुट आगे है। ये प्रैक्टिस आप इस तरह से, जो यंगस्टर है स्पेशली, इस तरह से रोज ये राइट फुट जमीन पे लगा दीजिएगा। खाली आपको देखना है, पहले यहाँ से रोज थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्ट्रेचिंग बढ़ाइए। यहाँ से पैर आगे ले जाए, और आगे और आगे और आगे और आगे, और पूरा इस पोजीशन में आप 180 डिग्री के ऊपर बैठ सकते हो। ये स्ट्रेचिंग कभी संभव है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो। और एक फ्रंट में भी स्ट्रेचिंग होता है। रोज यंगस्टर इस तरह से थोड़ा थोड़ा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना प्रैक्टिस, ज्यादा जबरदस्ती मत करना, नहीं तो स्नायु खिंच जाएंगे। देखिए, स्ट्रेचिंग बढ़ सकता है, स्ट्रेचिंग बढ़ सकता है, स्ट्रेचिंग बढ़ सकता है, और ये 180 डिग्री के ऊपर दोनों पैर जा सकते हैं। इस स्थिति में आप सरलता से बैठ सकते हो, खुशी से बैठ सकते हो, और आप फॉरवर्ड बेंट भी कर सकते हो। ये जो डेमो दे रहा हूँ वो स्ट्रेचिंग आपका एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हो सकता है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेचिंग करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं आसन की ओर। सबसे पहले आसन करेंगे, उसके पहले एक कमर को आपकी थोड़ा व्यायाम देना जरूरी है। स्टार्ट करने के पहले तो थोड़ी सी कमर की 4-5 बार मूवमेंट कर लेते हैं। देख लीजिए, दोनों पैर के घुटने के बीच में डिस्टेंस, पैर के बीच में डिस्टेंस। यहाँ से पहले देखिए, श्वास भरना है, थोड़ा कमर को पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ना है, घुटने को बैंड करना है, सीधा नहीं रखना है, झुकाना है, और दोनों हाथ इस तरह से जमीन के ऊपर लगाना है। पूरक यानी कि ब्रीथ पड़ते ऊपर, रेचक नीचे करेंगे। ये क्रिया 8 बार। बोला रेडी? दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, घुटने को झुकाना है, सीधे नहीं जाना है। करेंगे पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। कम से कम 20 बार ये क्रिया आपके लिए, आज मैं ज्यादा नहीं कराता हूँ, थोड़ा थोड़ा कराता हूँ, 20 बार कम से कम करना चाहिए। अब जो पहला आसन है वो ताड़ासन, सीधे खड़े रहना है, दोनों पैर नजदीक में, और यहाँ से श्वास भरते हुए इस तरह से हाथों को ऊपर उठाना है, सहज स्थिति में रहना है इस स्थिति में, और रेचक के साथ करेंगे। हर पूरक के साथ श्वास भरना है, रेचक के साथ हाथ को नीचे लेते हुए रेचक कर देना है। करेंगे पूरक, हाथ ऊपर उठाइए, श्वास भरते जाए पूरी तरह से प्राणायाम के साथ, इस स्थिति में रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रेचक। चलो 4 बार करेंगे। सेकंड बार के लिए तैयार? पूरक 1 2 3 4, नॉर्मल श्वास ले छोड़े, 5 6 7 8 9 10 और रेचक। रेडी फॉर द थर्ड टाइम? पूरक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रेचक। रेडी? पूरक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम रेचक। ये हर आसन में थोड़ा थोड़ा कराता हूँ ताकि एक दिन में ज्यादा आपको स्ट्रेस ना आ जाए। अब कमर के लिए कटी चक्रासन, पहले मूवमेंट करेंगे इसमें ताकि कमर का एक्सरसाइज मिले। उसके बाद में दो बार आसन में रुकेंगे। देखो हाथ को मैंने फैलाया, पहले डेमो देता हूँ। इस तरह से मूवमेंट, रेचक, पीछे जाने के समय श्वास भर छोड़ना है, आगे आने के समय श्वास भरना है। यहाँ से हाथ इस तरह से फैलाना है, रेचक, फिर पूरक, रेचक, फिर पूरक। पहले मूवमेंट करेंगे 8 बार।
8 टाइम्स। दोनों हाथ को फैलाइए मेरे साथ। अब श्वास छोड़ते हुए 1, पूरक के साथ सेंटर, रेचक, 2, 3, मूवमेंट, 4, 5, 6, 7, 8, come on, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Om. Relax. पसीना निकलेगा और बहुत अच्छा है, शरीर में से सब टॉक्सिन्स निकल जाता है, शरीर शुद्ध बनता है। अब आसन में रुकना है 10 काउंट तक, दोनों हाथ फैलाते हुए श्वास भरते हुए फैलाना है, और यही स्थिति में श्वास छोड़ते हुए मुड़िए पीछे और स्थिति में रहिए। नॉर्मल श्वास लेते छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरक, दूसरी ओर रेचक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरक। ओम। इससे क्या होता है, ताड़ासन जो पहले हमने किया, ताड़ासन से बच्चों की हाइट बहुत ही उपयोगी होता है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही बलवान बनती है, आपके पैर बलवान बनते हैं, पैर के पंजे बलवान बनते हैं। तो समग्र शरीर को ताड़ासन से एक्सरसाइज मिली। अब जो कटी चक्रासन से आपको बैक का प्रॉब्लम आता है, कमर का, स्पाइनल प्रॉब्लम, वो हर प्रॉब्लम ये दूर कर देता है। साथ में कमर की चर्बी को, पेट की चर्बी को ये कम करता है, आपके हाथ के कंधे भी बलवान बनाता है। अब लेटरल बेंडिंग, साइड की चर्बी को कम करने के लिए देख लीजिए, पहले पूरक के साथ इस तरह से हाथ ऊपर उठाना है, फिर आपको हाथ को बैंड नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, सीधा ही रखना है, और ये कमर का हिस्सा यहाँ से खिंचाव बढ़ाना है इस हिस्से में, और खिंचाव, हाथ को और स्ट्रेट करें बस। और सेम रेचक के साथ, पूरक के साथ हाथ ऊपर उठाना है, रेचक के साथ झुकना है। पहले मूवमेंट करेंगे 8 बार। राइट हैंड अप, पूरक, लेफ्ट रेचक, पूरक, 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 रेचक, पूरक और रेचक। अब स्थिति में 10 काउंट तक रुकना है, करेंगे। राइट हैंड पूरक करते हुए अब सब लोग मेरे साथ में करें, और लेफ्ट साइड में हाथ का खिंचाव बढ़ाइए, 10 काउंट तक खींचते रहिए बॉडी को, नॉर्मल श्वास लेते छोड़ते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओम। लेफ्ट हैंड श्वास भरते आप, राइट साइड 1, सीधा, आगे मत झुकिए, सीधा 2, 3, 4, खिंचाव बढ़ाइए, 5, 6, 7, 8। ओम। राइट हैंड अप, पूरक, लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओम। चेंज, लेफ्ट हैंड पूरक, towards right side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए। अब जो आसन हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, जिसका नाम है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन श्रेष्ठ आसन है। अगर ये आसन आप करते हो योग के अंदर, मेरा दावा है आपके शरीर की चर्बी तो 100% कम हो जाएगी, एक सुंदर बॉडी को शेप मिलेगा, बेस्ट शेप मिलेगा। आज मेरी उम्र 58 इयर्स की है, मगर मैं हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक, मतलब फुल डे ऐसा लगता है मेरे अंदर एनर्जी भरी हुई है।
तो वीरभद्रासन जैसे आसन करने चाहिए, मगर ये धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये आसन में क्षमता को बढ़ाना है तो 5 काउंट आप रह सकते हो, 5 काउंट रहिए, 10 काउंट रहते हो, 10 काउंट। जिसको नीज की बहुत ज्यादा इंजरीज या कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन मत करें। जिसको हार्ट का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, तो भी आप मत करें। तो मैं वीरभद्रासन का एक छोटा डेमो देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और रोज मैं कहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आसन जरूर कीजिए। समग्र बॉडी, ये आसन है उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है, शौर्यता का प्रतीक माना जाता है, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है इसको, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अद्भुत रूप से डेवलप होता है। आपको निडरता, डर नहीं लगता है। जैसे कोविड आया, कोविड गया, वो सब डर ही आसन निकाल देता है। इतना आत्मविश्वास बढ़ाता है आपके अंदर कि आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आप सफलता पाओगे। तो ये आसन पहले देखिए किस तरह से करना है। मेरा राइट फुट आगे है, इसमें जंप करके करना है, मगर ये लोग 3.5-4 फुट का फासला रखते हुए, मगर आप शुरू करते हो तो इतना लंबा पैरों को नहीं रखना है। करीबन मैंने 3.5 फुट का फासला रखा है। मेरा लेफ्ट फुट इस दिशा में है और मेरा राइट है, मेरा पैर का पंजा है वो सीधा है। मतलब दोनों पैर की जो पोजीशन है वो अलग अलग एंगल में। राइट का पंजा मेरा स्ट्रेट है और तो लेफ्ट का पंजा टुवर्ड्स ये साइड में है। यही पोजीशन में आपको करना है। पहले देख लीजिए, ये पीछे का पैर लकड़ी के समान सीधा करना है, टाइट करना है, इसको बैंड नहीं करना है। अब यहाँ से आपका नी बैंड करते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए, कमर को पीछे लेते हुए, सर को पीछे लेते हुए, इस स्थिति में बस। मतलब कहने का मतलब कि आपको आगे नहीं झुकना है। लोग इस तरह से करेंगे, नहीं, आपको पीछे जाना है, बॉडी को पीछे रखना है और आपके हाथ के पीछे आपका सर होना चाहिए, कमर थोड़ी पीछे की ओर होनी चाहिए। करेंगे आपका राइट फुट धीरे धीरे, आप यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक करें, थोड़ा आगे ले सकते, आगे ले जाइए। करेंगे मेरे साथ वीरभद्रासन। दोनों हाथ जोड़े, पूरक, हाथों को ऊपर, अधिक ऊपर, सीधा, नी बैंड, पीछे का पैर सीधा, आपका जो पीछे गया हुआ पैर एकदम लकड़ी के समान सीधा, हाथ ऊपर की ओर। 10 काउंट, नॉर्मल श्वास ले छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। पूरा प्रेशर आपके थाइस के हिस्से में आएगा यहाँ पे। अब 3-4 काउंट में भी कुछ लोग थक जाएंगे शायद, मगर इसका अभ्यास 50 काउंट तक करना चाहिए धीरे धीरे। ओम। पोजीशन चेंज, आपका लेफ्ट फुट आगे ले जाए, राइट पॉइंटेड ये दिशा में है, लेफ्ट मेरा इस तरह है। करेंगे, दोनों हाथ जोड़े, पूरक, कमर पीछे, बॉडी पीछे, ध्यान ऊपर गए हाथ की ओर। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। थोड़ा सा कठिन है, इसमें प्रेशर काफी आता है आसन के दौरान। आप पसीना पहुंच सकते हो। 10 सेकंड का रिलैक्सेशन लीजिए, आंखें बंद, नॉर्मल श्वास ले छोड़े। ओम। अब वापस करेंगे थोड़ा सा परिवर्तन है आसन में, पहले डेमो देखेंगे। जैसे मैंने राइट फुट आगे लिया था उसी तरह से आगे सीधा पैर का पंजा है, लेफ्ट इस तरह से, मगर इस तरह से हाथों को फैलाना है और दोनों हाथ को चौड़ा करना है, इस तरह से नहीं, पूरा हाथ खोलना है और सामने गए हुए स्ट्रेट हैंड की ओर ध्यान करना है, इसी आसन में रहते हुए। 1 2 3 4 इस तरह से झुके रहना है, पीछे का पैर लकड़ी के समान सीधा। 5 6 करेंगे, चलो। आपका राइट फुट सामने की ओर सीधा, आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही लंबा करें। अगर आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों हाथ जोड़े और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को फैलाइए, दोनों शोल्डर को थोड़ा ब्रॉड करें। 10 काउंट, 1 2 श्वास लेते छोड़ते रहिए, 3 4 5
6 7 8 9 और चेंज। लेफ्ट फुट आगे, राइट मेरा पॉइंटेड ये दिशा में है, लेफ्ट फुट का जो पंजा है मेरा आगे गया, पैर का स्ट्रेट है। करेंगे दोनों हाथों को जोड़ते हुए, पूरा फैलाना है। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अभ्यास मैं आज पहला दिन है इसलिए बहुत ही कम समय करवा रहा हूँ, मगर ये अभ्यास को 100% आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये अगर रेगुलर करोगे, मेरा दावा है तो आपकी थाइस की चर्बी, हिप्स की चर्बी, समग्र बॉडी एकदम स्लिम और परफेक्ट शेप में बना रहेगा। अब पादहस्तासन, देखिए श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ लोग इतना झुकते हैं, रोज अभ्यास करें इतना ही झुकते हो उतना झुके। कुछ लोग यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक जाइए, मगर एक बात का ध्यान रखें, घुटने सीधे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके घुटने सीधे। कुछ लोग हाथ की उंगली लगा सकते हैं, पैर को सीधा रखते हुए लगाइए, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो अंदर की ओर। तो ठीक है, आई एम ऑडिबल? ठीक है, करेंगे। आपको पुरख के साथ हाथ को ऊपर उठाना है। अब अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे, कोई झटका नहीं, रेचक और यहाँ पे हाथ रख सकते हो, यहाँ पे रखिए, झुके रहिए 15 काउंट तक। पहले मूवमेंट कर लेंगे, चलो पुरख अप, रेचक डाउन, पुरख अप, रेचक डाउन, पुरख अप, रेचक डाउन, पुरख अप। अब रुकना है 8 काउंट, रेचक। जो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे हाथ लगा सकते हो, हाथ लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास करते ऊपर। There's a 10 second break खाली, एक just to adjust the camera. ठीक है, Please. ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि योग कहते हैं लोग कि भाई सरल है, मैं बोलता हूँ सरल 100% आप बना सकते हो। आपकी बीकेएस अयंगर जो 93 इयर्स के वर्ल्ड बेस्ट योगा टीचर थे, वो गुरुजी को मैंने उसको देखा है, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी और उनको मैं उसका मैं आशिक हूँ। तो 93 इयर्स में उसको, इसकी उम्र जब 89 इयर्स की थी तो मैं पुणे गया था और उनका क्लास मैंने अटेंड किया था। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। एज मैटर नहीं करती। उस समय उन्होंने दोनों पैर गले पे चढ़ाने के चक्रासन जैसे श्रेष्ठ आसन किए थे, जिससे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिला था। तो एज मैटर नहीं करती है, आपके अंदर स्फूर्ति, ताजगी स्ट्रेचिंग से बढ़ सकती है और एक्सट्रीम लेवल तक आप आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा कैमरा एडजस्टमेंट हो रहा है शायद, और Yes, I think इसके बाद में please go ahead. शुड आई गो? Yes, go ahead. श्योर, या ओके, डन। इसके बाद में करेंगे बहुत उत्तम आसन करेंगे, जिससे साइटिका की तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है, पैर की नस खींच जाती है यहाँ से। तो साइटिका की तकलीफ को दूर करने के लिए साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन से लेके, बैक प्रॉब्लम से लेके, स्पाइनल प्रॉब्लम से लेके, तो समग्र बॉडी को स्लिम बनाने के लिए त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त यानी कि एक दिशा से दूसरी ओर ले जाना। दोनों पैरों को पहले देख लीजिए, 3-3.5 फुट का फासला है, दोनों पैर लकड़ी के समान सीधे। ये पैर बैंड नहीं करना है, आप जितना भी झुकते हो पैर बैंड नहीं करना है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए पहले देखिए, फैलाना है। रेचक के साथ आपका राइट हैंड लेफ्ट फुट के पास इस तरह से सरलता से आप यहाँ पे हाथ रखते हुए यहाँ पे रखिए, आप यहाँ पे रख सकते हो यहाँ, और ऊपर गए हुए है हाथ की ओर ध्यान। इस स्थिति में नॉर्मल श्वास लेनी छोड़नी है 10 काउंट तक, और श्वास भरते हुए ऊपर आना है। सेम वे दूसरी ओर करेंगे। पहले थोड़ी मूवमेंट करेंगे 8 बार, इस तरह से खाली मूवमेंट करेंगे। सब लोग तैयार? दोनों पैरों के बीच में अंतर, पूरा, और राइट हैंड लेफ्ट पे पास 1, रेचक के साथ 2, नीचे ही नीचे रहते 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om. रिलैक्स। श्वास के ऊपर कंट्रोल पाइए। ओम। अब स्थिति में रुकना है। देखिए हर चीज तुरंत तुरंत नहीं हो पाएगी, शायद आपको कठिनाई लगेगी, मगर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। देखिए दोनों पैर के बीच में अंतर, पूरक, राइट हैंड लेफ्ट फुट के पास, और स्थिति में रुकिए रेचक के साथ, और ऊपर गएगा हाथ की ओर ध्यान। नॉर्मल श्वास ले छोड़े। 1, 10 काउंट रहना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओम। पूरक। अप राइट साइड सेम वे, रेचक चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओम। इसका अभ्यास रोज आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। समय की मर्यादा से मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ कि खाली आपको डेमो और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने आसन भी हो सके उतने। तो ये हुआ था परिवृत त्रिकोणासन। ये रोज कीजिएगा। वीरभद्रासन, परिवृत त्रिकोणासन जैसे आसन बहुत ही उपयोगी है आपकी शरीर की चर्बी को कम करने के लिए, शरीर को स्लिम रखने के लिए। अब कुर्सी, थकान लगी है, थकान आपको लगी है, और थकान लगी है तो थकान को तो दूर करना पड़ेगा। थकान दूर करने के लिए क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। मगर मेरे पास काल्पनिक कुर्सी है, जो कुर्सी है नहीं मगर इमेजिनरी कुर्सी है मेरे पास, और वो कुर्सी के ऊपर बैठना है। किस तरह से बैठना है? देखिए आप दोनों पैर के बीच में थोड़ा अंतर। यहाँ से आप जैसे कुर्सी में बैठते हो तो इस तरह से नहीं बैठते हो, आप पीछे बैठते हो, तो आपको सीधा पीछे जाना है और हाथ को जरा स्ट्रेट रखना है और थोड़ा नीचे बैठना है। बस मेरे पास एक कुर्सी है, मैं बैठा हूँ, रिलैक्स होके उस तरह से करना है। ज्यादा नहीं कराऊंगा, मगर घुटने बहुत ही बलवान बनेंगे, कमर आपकी बहुत ही बलवान बनेगी। रोज ये करोगे, घुटने का लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो करेंगे। सीधे खड़े हो, दोनों हाथ स्ट्रेट, और पीछे काल्पनिक आप थोड़ा झुकेंगे तो भी चलेगा, पहला दिन ज्यादा मत करना, ठीक है। और पूरक के साथ ऊपर हाथ, रेचक के साथ डाउन डाउन डाउन, नीचे बैठे, आगे मत झुकिए, पीछे, और थोड़ा बैठिए, और बैठिए, और बैठिए, कमर सीधी, और इसमें 10 काउंट। 1, 2, 3, 4। मितेश भाई जल्दी काउंट कीजिए, आप बोलिएगा मगर नहीं। 4, 5, 6, कमन कमन, 7, 8, 9 और ये कुर्सी है मगर काल्पनिक कुर्सी है। इसमें बैठने से आपके घुटने बहुत ही ज्यादा बलवान बन हो सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास बढ़ाइए। ओम। बैठ जाए, और एक छोटा सा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक छोटा शवासन लेने के बाद दूसरे आसन की ओर चलेंगे। इस तरह से सो जाए, हाथ के पंजे, हथेली आसमान की ओर खुली, आंखें बंद। 10 सेकंड के लिए श्वास के ऊपर पूरा नियंत्रण पाइएगा। नॉर्मल श्वास आती जाती है तब तक शांत शांत, पूरा शरीर शांत, शांति का अनुभव करें। श्वास की रिदम धीरे धीरे कंट्रोल में आती हुई शरीर को ढीला करें, पूरी तरह से ढीला। ओम। इसके बाद में एक लंबा शवासन कुछ आसन के बाद दूंगा, 7-8 मिनट का शवासन। तो रेडी हो जाए, बैठ जाए मेरे साथ इस तरह से। दूसरे आसन के लिए बैठ के करने वाले कुछ आसन की करेंगे प्रैक्टिस। तो सीधे बैठे पहले मैं आसन का पहले नाम लेता हूँ, भद्रासन, जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था वहीं से शुरू करता हूँ, बाद में सब अलग अलग आसन है। भद्रासन के लिए इस तरह से दोनों पैरों को जोड़ना है, और यहाँ से बटरफ्लाई, अप एंड डाउन इस तरह से। ये आपके थाइस की मसल को एकदम रिलैक्स करना है। इस तरह से भद्रासन में
अप एंड डाउन, और चेहरे के ऊपर खुशी, आनंद, पैर हो सके उतना नीचे दबाना है और नीचे ले जाना है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा झटका मत दीजिएगा, जितना होता है उतना ही करें। अप एंड डाउन बटरफ्लाई, वेरी गुड, करते रहिए और 5-6 काउंट करते रहिए अप एंड डाउन, और पैर नीचे ले जाए थोड़ा, वेरी गुड। दोनों पैरों को कोशिश करें नीचे रखने की, और नीचे रखने के बाद श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए 3 बार अप एंड डाउन। आप जितना झुकते हो उतना ही झुके, कोई जबरदस्ती मत करे, कोई झटका मत दे। 3 बार अप एंड डाउन करेंगे, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा और रेचक। ओम, पूरक के साथ ऊपर, और अब रुकना है स्थिति के अंदर, पूरक और रेचक। इस स्थिति में 10 काउंट तक नॉर्मल श्वास लेते छोड़ते हुए रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और पूरक के साथ आप। ये हुआ भद्रासन। भद्रासन श्रेष्ठ आसन है। लेडीज के जितने भी जो मासिक अनियमितता होती है वो दूर हो जाती है। जेंट्स के प्रोस्टेट के प्रॉब्लम दूर होते हैं। आपके कमर के नीचे के सभी अवयव एकदम स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। आपके पेट के अवयव बहुत ही स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। तो ये आसन जरूर आपको दिन में एक बार कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में हम करेंगे गौमुखासन। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें सूर्य नमस्कार भी बताइएगा प्राणायाम के साथ। तो मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि 2 सूर्य नमस्कार करके बताऊंगा आखिर में, ये आसन होने के बाद। और हम लोग सब 2 सूर्य नमस्कार विद ब्रीदिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग। तो 2 सूर्य नमस्कार बताऊंगा। उसके पहले जब गौमुखासन करेंगे, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से दूर रखना है। आप खाली पोजीशन समझ लीजिए। फिर मेरा राइट फुट इस तरह से पीछे लिया, लेफ्ट को घुटने के ऊपर से घुमाया, और थोड़ा ऊपर उठते हुए दोनों घुटने को एक दूसरे के ऊपर ले जाना है, मिलाना है इस तरह से दोनों घुटने को। यानी कि एक लेवल में हो सकता है उतना लाने की कोशिश करनी है। यहाँ से दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे पकड़ के रखे हैं मैंने। श्वास भरा है, श्वास छोड़ते हुए 3 बार पहले मूवमेंट, गौमुखासन करने के पहले फ्रंट मूवमेंट तो करेंगे। इस तरह से बैठे, आपका राइट फुट अंदर ले जाए, हिप्स को टच करें, लेफ्ट को ऊपर उठते हुए थोड़ा सा मिलाते हुए दोनों घुटने को एडजस्ट करें एक दूसरे के ऊपर। स्थिति में दोनों हाथ के पंजे फिट पकड़े। 3 बार अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम। अब जो पैर आपका ऊपर है, यानी कि लेफ्ट पैर आपका ऊपर है, तो आप लेफ्ट हैंड श्वास भरते ऊपर ले जाना है। पीछे से हाथ को मोड़ना है, राइट हैंड को, और दोनों हाथ की उंगलियां या कलाई पकड़ने की कोशिश करनी है आपको, दोनों हाथ को इस तरह से। और गर्दन झुकाइए मत, गर्दन सामने की ओर सीधी। गौमुखासन इस तरह से 10 काउंट तक रहना है, करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड पूरक के साथ आप पीछे दोनों हाथ को इंटरलॉक करें और गर्दन सीधी करें, सीधे बैठे। स्थिति में श्वास ले छोड़े। 1, 2, 3, 10 काउंट खींच के रखिए हाथों को। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ओम। इससे क्या होता है, आपके ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, बहुत ही आपके लॉन्ग स्ट्रंग होते हैं। इसमें श्वासोच्छ्वास की क्रिया करने से आपके फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ लाइफ टाइम कभी भी नहीं आएगी। जेंट्स में हाइड्रोस्टिल, प्रोस्टेट, जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम्स होते हैं, सब प्रॉब्लम इस स्थिति में रहने से दूर हो जाते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही बलवान बनती है। करेंगे अभी जैसे हम आगे नमस्कार करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ नहीं लानी है तो आपको पीछे नमस्कार करना है। किस तरह से करना है, यहाँ से देख लीजिए किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे आगे नमस्कार में गौमुखासन की पोजीशन में बैठते हुए, जो लास्ट मेरी जो उंगली है वो कमर के साथ इस तरह से चिपकी हुई, अंगूठे मेरे बाहर की ओर है, और यहाँ से दोनों हाथ को जोड़ते हुए इस तरह से मैं फैला रहा हूँ। देखिए, मतलब जैसे आगे नमस्कार करते हो तो ऐसे ही पीछे नमस्कार। ये बहुत थोड़ा, इससे आपका शोल्डर बलवान बनेगा, आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ कभी भी नहीं आएगी, आपकी चेस्ट के ऊपर बहुत सानुकूल असर होगी। आप कोशिश कर सकते हो गौमुखासन की पोजीशन में बैठे
और हाथों को पीछे ले जाए, दोनों जो लास्ट उंगली है आपकी वो पहले जोड़े, फिर अंगूठे बाहर की ओर रखते हुए जोड़े, और इस स्थिति में 5 काउंट, 1 2 3 4 और 5। आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, आप नहाने के समय भी कर सकते हो, थोड़ा साबुन होगा तो आपका हाथ जल्दी से हो फिसलेगा और आराम से कर पाओगे, खड़े खड़े भी मुद्रा कर सकते हो। तो गौमुखासन हमने जो किया था, अभी पोजीशन चेंज करेंगे, जो पैर की पोजीशन चेंज करेंगे, दूसरा पैर आप अंदर ले जाए जो आपने किया था उससे विरुद्ध पैर, और वापस दोनों पैर के घुटने को मिलाए और अप एंड डाउन, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक और रेचक। और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक और ग्रिप करने की कोशिश, 10 काउंट, 1 गर्दन सीधी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और होम। अब जो आसन करने जा रहे हैं बहुत ही श्रेष्ठ आसन है, उष्ट्रासन, वन ऑफ द बेस्ट आसन। जिसके बाल खरते हैं, कोई कहते हैं, लेडीज लोग कहते हैं मेरे बाल बहुत ही गिरते हैं, मतलब उम्र के साथ, ये आसन करने से आपके जो बालों में गिरावट आती है वो भी दूर हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इससे मिलता है। ये है पश्चिमोत्तानासन दोनों से। इससे अनेक लाभ है उष्ट्रासन से, कि आपके कमर के स्नायु, आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेके एवरी ऑर्गन्स, आपका थायराइड प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स में बोलता हूँ, सब जितनी भी आपकी शरीर के अंदर दुविधा है वो सब ये आसन से दूर होती है। शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त बनता है और आपका स्वास्थ्य, अस्थमा का सब प्रॉब्लम इससे दूर है। देखिए पहले आपको किस्सा करना है। इस तरह से मैं बैठा हूँ, शुरुआत में जो साधक है पैर को इस तरह से रखे, जो अभ्यास होने के बाद पैर को इस तरह से पंजे को खोल देना है। अभी तो जब करने के लिए नए साधक के लिए इस तरह से बैठे, सीधे बैठना है। राइट हैंड मैंने ऊपर श्वास भरते उठाया और मैंने पीछे धीरे से पैर का एड़ी को पकड़ा है, लेफ्ट ऊपर उठाया धीरे से दो पैर की। अब यहाँ से मेरे स्टमक को मैंने ऊपर लिया, कमर ऊपर लिया, और ये स्थिति में है। ये स्थिति हर कोई नहीं कर पाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो नहीं कर पाते हो जबरदस्ती मत करें। इस तरह से दोनों हाथ पीछे रखें और पीछे रख के सिर्फ इस तरह से, सिर्फ इस स्थिति में 10 काउंट रहिए। जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ करें, घुटने के बल के ऊपर आप आ जाएं। राइट हैंड श्वास भरते हो, जो लोग इस तरह से करना चाहे सिर्फ इस तरह से करें। राइट हैंड पूरक और रेचक के साथ पीछे, लेफ्ट हैंड पूरक और रेचक के साथ पीछे, और आपकी गर्दन पीछे झुका दे, कमर ऊपर खींचे, स्पाइनल कॉर्ड और रिलैक्स। 10 काउंट नॉर्मल श्वास ले छोड़े, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा शरीर बाहर निकले, 6 7 8 9 और ओम। अब इस स्थिति से वज्रासन में बैठ जाए, थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग के बाद आगे झुक लेंगे, इस तरह से वज्रासन। दोनों पैर के अंगूठे जुड़े हुए, आप एड़ी के ऊपर बैठिए और इसमें खाली आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से सभी को ढीला इस स्थिति में छोड़ दे। 10 काउंट करेंगे, पूरक और रेचक, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। अब जो आसन करने जा रहे हैं बहुत ही श्रेष्ठ आसन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है लाइफ में कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बहुत गैस होता है, खाना पाचन नहीं होता है। मैं पेट के हर एक अवयव के लिए, लीवर, गोल ब्लेडर, आपके अंदर पेनक्रियास, आपके पेट के आते इंटेस्टाइन, हर पार्ट्स के लिए पवन मुक्तासन श्रेष्ठ आसन है। आपको मैं बताता हूँ, आपको ये रोज करना है। जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मेरा दावा है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, मेरा दावा है ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। देखिए किस तरह से पहले करना है, एक छोटा सा डेमो। सो जाना है, लेफ्ट फुट थोड़ा सा ऊपर उठाना है सीधा रखते हुए। पहले एक पैर से करना है, यह अभ्यास पहले एक पैर से करना चाहिए, फिर उसको बैंड करना है। दोनों हाथ की कलाई से इस तरह से पैर को पकड़ना है, धीरे से। आपको जो नए साधक को पैर को थोड़ा ऊपर उठाना है, देखिए थोड़ा जमीन से 2 इंच उठाए ताकि वो आसानी से ऊपर उठ सके।
जिसको गर्दन की बहुत ज्यादा बीमारी है, तकलीफ है, वो लोग ज्यादा गर्दन मत उठाए, वो सिर्फ ऐसे ही पैर को दबा रखे। जिसको नॉर्मल है, गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपकी दाढ़ी, चिन, पैर को टच करनी है। अगर आपकी गर्दन में कोई दर्द है तो मत कीजिएगा, आप खाली पैर को खींच के रखें बस। करेंगे लेफ्ट फुट पूरक के साथ, आप उसे बैंड करें, रेचक के साथ श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी थोड़ा ऊपर और दाढ़ी टच। 10 काउंट, 1 2 3, दूसरा पैर सीधा, 4 5 6 7 8, नॉर्मल श्वास लेनी छोड़नी है, 9 10, पैर राइट फुट नीचे, फिर पैर श्वास भरते हुए ऊपर और पैर श्वास छोड़ते हुए नीचे। करेंगे राइट फुट से, राइट फुट आप सेम करेंगे, उसको बैंड करें, दोनों हाथों से लॉक करें और आपका लेफ्ट फुट थोड़ा ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए, 1 नॉर्मल श्वास ले छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9, श्वास भरते आप पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये क्रिया आप रोज कम से कम 1-1 फुट से 2-2 3-3 बार करें। अब आज मैं खाली डेमो दे रहा हूँ, दोनों पैरों को अभी करना है, इस तरह से ऊपर उठाना है, सीधा रखना है, दोनों घुटने को बैंड करना, देख लीजिए, दोनों हाथ से दोनों पैर के घुटने पकड़नी है और श्वास छोड़ते हुए। जिसको स्पॉन्डिलोलिसिस है, गर्दन की बीमारी है, तो खाली इस तरह से करें, आप गर्दन मत उठाइए। करेंगे पूरक और रेचक के साथ पूरी श्वास छोड़ते हुए उठे, 1 2 10 काउंट, 3 4 रहिए, 5 6 7 8 9। ओम, दोनों पैरों को पहले श्वास भरते ऊपर ले जाए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाए। आसन को झटके से मत छोड़ना, हमेशा प्राणायाम के साथ छोड़ना चाहिए। अब लास्ट आसन जो बहुत इंपॉर्टेंट आसन मैं करवाने जा रहा हूँ, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, ये आसन, जैसे ये जो आसन जितने भी मैं करवाने जा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट आसन है लाइफ में। दोनों हाथ से दोनों पैर की एड़ी को पकड़ना है इस तरह से, सेतु यानी कि ब्रिज, ब्रिज बनाना है। दोनों हाथ से मैंने पैर की एड़ी को पकड़ा हुआ है और यहाँ से कमर को धीरे से लिफ्ट करना है इस तरह से और ऊपर उठना है इस स्थिति में, और नॉर्मल श्वास लेनी छोड़नी है, बस हो गया आसन। जो लोग बहुत अच्छा कर सकते हो वो दोनों हाथ इस तरह से भी रख सकते हो, मगर ये अभ्यास के बाद करना। तो करेंगे, दोनों इस तरह से सो जाए, पैरों को बैंड करें, पैरों को बैंड करें और उसके बाद में आपकी कमर धीरे से ऊपर और ऊपर और ऊपर और से भी थोड़ा और ऊपर। स्थिति में 10 काउंट, श्वास ले छोड़े, श्वास रोकिए मत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। ये थायराइड की तकलीफ भी दूर करता है, हर प्रॉब्लम्स को ये आसन दूर कर सकता है, सेतु बंधासन। एक छोटा सा शवासन ले लेते हैं, आप स्थिति में सो जाए शवासन की स्थिति में, उसके बाद में प्राणायाम की ओर चलेंगे। मगर लास्ट में मैं आपको 2 सूर्य नमस्कार बताऊंगा सेशन खत्म होने के साथ साथ में। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है, इस तरह से सो जाए, आंखें बंद करें, एक 5 मिनट का शवासन पूरी ताकत भर देगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ देगा, पॉजिटिवनेस बढ़ देगा। आंखें बंद करें, शरीर ढीला, अब आंखें बंद ही रखे, रुमाल रख सकते हो आंखें के ऊपर, शरीर ढीला, शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा शरीर ढीला, शिथिल शिथिल शिथिल, शांत हो जाए, पूरी तरह से शांत। श्वास स्वाभाविक रूप से आती है, श्वास जाती है, आती हुई जाती हुई श्वास का निरीक्षण करें, मन शांत शांत शांत, मन में गहरी शांति, शरीर ढीला, शरीर की गर्दन से लेके कंधों से लेके पैर से लेके हर एक अवयव ढीले, शिथिल शिथिल शिथिल। बंद आंखों से ध्यान करें दोनों पैर की उंगलियों की ओर, 10 उंगलियों को ढीला करें, जहां जहां कहता हूं मन को ठहरा दीजिए,
10 उंगलियां ढीली, शिथिल, शिथिल, शिथिल। दोनों पैर की एड़ियों के प्रति ध्यान, एड़ियां ढीली, शिथिल, शिथिल, शिथिल। मन में आनंद, खुशी। अब ध्यान थोड़ा घुटनों की ओर, घुटने ढीले, बहुत ही ढीले छोड़े घुटने को, कोई तनाव नहीं, घुटने ढीले, शिथिल। 7 हल्के स्नायु ढीले, ढीले, शिथिल। हिप्स के स्नायु ढीले, शिथिल, शिथिल। दोनों पैर जैसे निर्जीव अवस्था में पड़े हुए, शिथिल अवस्था में, चेतनहीन अवस्था में। ध्यान थोड़ा कमर की ओर, कमर के स्नायु ढीले, पीठ के स्नायु ढीले, रिलैक्स करवाइए। थकान से मुक्त होना है। कमर के स्नायु ढीले, शिथिल, शिथिल, शिथिल। हृदय के स्नायु, हृदय को एकदम आराम दीजिए। हृदय के स्नायु ढीले, शिथिल, शिथिल, शिथिल। पेट ढीला, पेट के अंदर आए हुए सभी अवयवों को पूरी तरह से आराम मिलता हुआ, हर एक अवयव स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त। आप जैसा सोचोगे ऐसा ही शरीर बनेगा। आपके शरीर की किडनी, पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन सब कुछ स्वस्थ और निरोगी है। अब ध्यान गर्दन की ओर, गर्दन ढीली, गर्दन को रिलैक्स करवाइए, एकदम ढीला जो स्थिति में है। चेहरे के प्रति ध्यान, होठ ढीले, गाल ढीले, आंखों की ओर ध्यान, आंखों की पलकें ढीली, आईब्रोज को रिलैक्स कर दीजिए। कोई मस्तक पे टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं संसार की। मन पूरी तरह से शांत, गहरी शांति का अनुभव। 2-3 सेकंड श्वास को आते जाते हुए देखिए। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जाती हुई। श्वास का अवलोकन करें 2-3 सेकंड। पूरा शरीर ढीला, शिथिल, शिथिल, शिथिल। अब 2-3 चीज मन में कहिए। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। जो मैं कहता हूं पूरे मन से कहिए। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है। मैं हर कार्य में सफलता पाऊंगा। मैं निडर हूं, मैं अभय हूं। कोई चीज से मुझे डर नहीं लगता। चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, मेरे अंदर रोग प्रतिकार शक्ति है। मैं हर चीज से बाहर आ जाऊंगा। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। ये मन में कहिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। आप जैसा कहोगे ऐसा ही होगा आपके साथ। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, तंदुरुस्त हूं। अब आखिरी कुछ इंस्ट्रक्शन खुद को दीजिए। मैं काम, क्रोध, मोह, माया, निंदा, ईर्ष्या से मुक्त हूं। रिपीट कीजिए शब्दों को। मैं काम, क्रोध, मोह, माया, निंदा और ईर्ष्या ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव आनंद है। लोगों को खुशी देना है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लोगों को खुशी देना मेरा स्वभाव है। मैं निंदा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, किसी की बुराई भी नहीं करूंगा। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है लोगों को खुशी देना, आनंद देना। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति का स्रोत बह रहा है जो मुझे हमेशा खुशी देगा। चेहरे के ऊपर तेज, बुद्धि खिलती हुई आप महसूस कीजिए। याद शक्ति पावरफुल होती हुई। ब्रेन आपका पूरी तरह से ठीक से कार्य कर रहा है, जिससे आपको सब कुछ याद रहता है। और बस अब स्थिति से बाहर आना है धीरे धीरे। अचेतन शरीर को वापस चेतनवंत करना है। दोनों पैर की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। चेतना शक्ति जैसे प्राण शक्ति ऊपर आती हुई एड़ियों के अंदर थोड़ा पेड़ी के एड़ियों को हिलाइए। घुटनों में थोड़ी मूवमेंट। अब थोड़ी सी चेतना शक्ति और ऊपर आती हुई दोनों हाथ के पंजे थोड़े थोड़े मूवमेंट करवाइए। और गर्दन थोड़ी लेफ्ट राइट मोड़िए। थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट। एक नई चेतना शक्ति, थकान से मुक्त शरीर। और स्थिति से गर्दन को मोड़ने के बाद आपका लेफ्ट हैंड सर के पीछे ले जाए। करवट आपकी लेफ्ट साइड घुमा दीजिए। हाथ के ऊपर आपका सर रहेगा 3 सेकंड तक, 3 काउंट तक। करवट आपने घुमा ली है। 1 2 3। ओम। धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाए। फ्रेश हो चुके हो आप, थकान से मुक्त हो। ओम। एक
छोटा सा स्माइल, खुशी महसूस करें चेहरे के ऊपर और प्राणायाम की ओर चलते हैं। आज जो मैं प्राणायाम करवाने जा रहा हूँ वो उज्जाई प्राणायाम है। ये प्राणायाम बहुत कम लोग अच्छी तरह से करते हैं, मगर ये प्राणायाम अगर एक बार कर लिया तो मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की मैं शुरुआत करवाऊंगा डीप ब्रीदिंग से। आप सुखासन में बैठ सकते हो या पद्मासन में, जो स्थिति, या आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, आपको जहां उचित लगे वहां बैठे और शुरू करते हैं। ये 10 मिनट का प्राणायाम आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सब अलग अलग प्राणायाम, आज सिर्फ आपको मैं छोटा छोटा डेमो दूंगा, पूरा प्राणायाम नहीं कराऊंगा, मगर सीख लीजिएगा किस तरह से करना है। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई में क्या करना है, आपको गले से श्वास भरनी है, यानी कि श्वास का अनुभव नाक के अंदर हवा का होगा ही नहीं। आपका अनुभव सीधा गले के अंदर घर्षण युक्त हवा नीचे आएगी और चेस्ट के स्नायु को फुलाना है पूरी तरह से और घर्षण युक्त हवा बाहर निकालनी है। ये श्रेष्ठ प्राणायाम। आपके गले की कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम। आपके उज्जाई से श्रेष्ठ प्राणायाम कोई है ही नहीं। हर अनुलोम विलोम में भी उज्जाई आप कर सकते हो धीरे धीरे, मगर अभी पहले खाली डीप ब्रीदिंग में करेंगे आज सीखने के लिए। देखिए एक बार छोटा डेमो, उसके बाद में हम लोग 4 या 5 प्राणायाम करेंगे। देखिए सीधा बैठा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर है और देखिए किस तरह से आवाज के साथ, घर्षण के साथ। पूरे गले से मैंने श्वास खींची और श्वास इस तरह से रोका है। 1 2 3 4 काउंट मैंने रोका और घर्षण के साथ, गले की आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालें। कोशिश करिए, थोड़ी खराश आएगी गले में, मगर कोशिश कीजिए। चलो करेंगे मेरे साथ, कम से कम 6 प्राणायाम ये कर लेते हैं। सीधे बैठे, पूरा ओम, श्वास रोकिए 4 काउंट, 1 2 3 4, रेचक, पूरा, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक, पूरा, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक, पूरे गले से खींचिए, पूरा, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक, रख, 1 2 3 4, रेचक, पूरा, 1 2 3 और 4, रेचक। हर चीज में पूरी तरह से नहीं करा सकता हूँ। 1 घंटे का समय होता है, समय की बहुत ही मर्यादा होती है। मैं खाली प्राणायाम की आपको सिस्टम समझा सकता हूँ, धीरे धीरे आपको अपने आप ही करना है। अब दूसरे प्राणायाम 2-3 फटाफट बता दूंगा, थोड़ा फास्ट। एक बार हम लोग सेशन करेंगे, सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो प्राणायाम का करेंगे और ध्यान का करेंगे और ये सूर्य नमस्कार जैसे कुछ आसन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। अब खाली उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम 3 बार खाली करके हम लोग करेंगे। रोज अभ्यास बाद में करना है। दोनों हाथ की जो 2 अंगूठे के बाजू के 2 उंगली इस तरह से बैंड करना है। यहाँ से कुंभक के साथ 3 बार करेंगे। कुंभक यानी कि श्वास रोकना है, राइट नोस्ट्रिल अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट से धीरे से पूरा श्वास को होल्ड करें, राइट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, लेग से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, राइट से रेचक,
उसी से पूरक, होल्ड, लेफ्ट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, राइट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, लेफ्ट से धीरे से रेचक। ये प्राणायाम कम से कम आपको 7 से 8 मिनट, हर एक प्राणायाम 5 से 7 मिनट करना चाहिए। यानी कि प्राणायाम का समय कम से कम 25 मिनट का रोज आप दिन में या ऑल्टरनेट दिन को कम से कम आपको देना चाहिए। मगर आज मैं खाली आपको डेमो देता हूँ, मतलब पूरा प्राणायाम कराने का समय नहीं है। अब जो करेंगे सिर्फ छोटी 5 के साथ 10-12 बार क्रिया करेंगे कपालभाति की। कपालभाति में श्वास को बाहर फेंकना है, श्वास अपने आप अंदर आएगी। आपको भरने का प्रयास नहीं करना है। फेंकने के लिए पेट थोड़ा अंदर जाएगा, जैसे आप थ्रो करोगे तो। देखिए एक बार, पहले श्वास भरनी है, फिर पेट अंदर अंदर खींचना है। करेंगे मेरे साथ? 15 बार प्राणायाम करेंगे, पूरक, थ्रो और पेट अंदर खींचना है। श्वास परे, श्वास रोते हुए गर्दन को छाती से चिपका दे। इसे जालंधर बंद कहते हैं और रेचक। ये अभ्यास दोन में 2 बार कर सकते हो। श्रेष्ठ प्राणायाम है कपालभाति और भस्त्रिका। भस्त्रिका अगली बार करेंगे। अब शीतली और शीतकाली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में टंग जो आपकी होती है, जीभ होती है, वो जीभ को गोलाकार पोजीशन में, ये प्राणायाम आप गर्मी के दिनों में जरूर करें। मई जून महीने में बहुत ही जरूरी है करना। मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ करके बताएंगे। बैठिए और टंग की पोजीशन आपको मैं बताऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सुखासन में बैठ सकते हो या पद्मासन, जो उचित लगे। सबसे पहले टंग को बाहर निकालना है, देखिए, और फिर आगे से उन्होंने गोलाकार किया। आप ये कोशिश करें कि आगे से टंग इस तरह से गोलाकार, जैसे क्रो का जो चांच होती है उसकी तरह, वही पोजीशन में जीभ आती है। यहाँ से जीभ के बीच में से लंबी श्वास बनी है। गले के अंदर बहुत ही ठंडक लगेगी। एसिडिटी लाइफ टाइम दूर हो जाएगी, कभी भी जिंदगी में एसिडिटी नहीं होगी इस स्थिति करने से। और अब देखिए, पूरक के साथ श्वास भरे। एक छोटा डेमो है, बाद में आपको करना है। जैसे श्वास पूरा अंदर आ गया, जीभ को अंदर ली दिए और मुख बंद, और 1 2 3 4 काउंट तक मैंने उन्होंने श्वास रोका है। अब रेचक नाक से करना है, मुख से नहीं करना है, नाक से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो करेंगे सब लोग साथ में। टंग को बाहर निकाले, गोलाकार, पूरक। वेरी गुड, करते रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुख में जीभ दे लिए और इस स्थिति में 1 2 3 4 रेचक नाक से। वेरी गुड, सुपर। फिर से टंग बाहर, पूरक। देखो गले में कितनी ठंडक महसूस होती है। एकदम शीतल हवा अंदर आती हुई गले को ठंडक पहुंचाती हुई। जीभ, मुख बंद। 1 2 3 4 रेचक। वेरी गुड, कीजिएगा आप जो भी स्थिति में करिए। टंग को बाहर, जीभ के बीच में से हवा खींचिए, टंग अंदर, पूरक के बाद 1 2 3 4 रेचक। कमान, फिर से टंग को बाहर, गोलाकार, जीभ के बीच में से हवा खींच रहे हैं, चेस्ट के अंदर हवा भर रही है, गले के अंदर ठंडक। 1 2 3 4 और रेचक। आखिरी 2 बार करेंगे।
टंग बाहर और श्वास टंग के बीच में से खींचते हुए पूरा पूरा गले के अंदर ठंडक। 1 2 3 4 रेचक। आखिरी बार टंग बाहर गोलाकार पूरा जीभ अंदर होल्ड। 1 2 3 4 और धीरे से रेचक। वेरी गुड। ये प्राणायाम आप दिन में 3-4 बार कर सकते हो। जिसको ज्यादा एसिडिटी है, जलन होती है पेट में, बहुत ही कभी कभी जलन होती है, ये सब तकलीफ लाइफ टाइम दूर हो जाएगी। और सितली प्राणायाम के बाद सितकारी, सितकारी प्राणायाम के अंदर देखिए किस तरह से करना है। मुख को थोड़ा फैलाना है, मतलब लिप्स को आपको थोड़ा एक्सपांड करना है। टीथ टीथ को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और टीथ के बीच में से हवा खींचनी है करके आवाज के साथ। जैसे सीखी करो। देखिए एक छोटा डेमो। फिर मुख बंद और तुरंत रेचक। इसमें होल्ड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर बहुत ही ज्यादा जैसे ठंडक उसमें लगती थी सितली में, ऐसे सितकारी में लगेगी। एक बार छोटा, एक बार डेमो। वेरी गुड। अब श्वास रोका और रेचक। तो ये प्राणायाम 6 बार करेंगे। सब लोग तैयार? होठ को तो फैलाना है, टीथ एक दूसरे के साथ, दांतों के बीच में से हवा आएगी पूरा। वेरी गुड। पूरी श्वास भी भरिए। नॉर्मल मुख, नाक से रेचक। फिर से होठों को थोड़ा फैलाते हुए दांतों के बीच में से पूरा आवाज के साथ। वेरी गुड। होल्ड, नाक से रेचक। रख। धीरे से नाक से रेचक। रख। होठ बंद, नाक से रेचक। आखिरी बार पूरक। होठ बंद, नॉर्मल मुख और धीरे से रेचक। गले के अंदर 100% आपको ये प्राणायाम आप 10 मिनट 5-10 मिनट कर देखो, कोई भी एसिडिटी की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है कि आप एकदम फिट और तंदुरुस्त रहोगे। यहाँ पे योग का सेशन समय की मर्यादा से मैं जल्दी खत्म करता हूँ आज, मतलब करा करता हूँ। मगर 2 सूर्य नमस्कार, कुछ लोगों की लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट आई थी 2 सूर्य नमस्कार फास्ट बता देता हूँ। आपको एक डेमो दे देता हूँ पूरक रेचक के साथ। ये डेमो आप सूर्य नमस्कार इसी तरह से करेंगे, प्राणायाम के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। इस तरह से सीधे खड़ा रहना है और प्राणायाम के साथ पूरक रेचक के साथ ही करना है रोज, आपको जितनी बार कर पाते हो। पहले नॉर्मल इस तरह से अंगूठे छाती के साथ जुड़े हुए, कोनियां फैली हुई। यहां से चलो इस मुद्रा में सीधे खड़ा हूं मैं। यहां से श्वास भरते हुए पूरक के साथ, पूरी श्वास इस तरह भरी मैंने, पूरी श्वास इस स्थिति में भरनी है। फिर श्वास छोड़ते हुए आप आगे जितना झुक सकते हो, पूरी श्वास छोड़ते हुए। श्वासोश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लेफ्ट फुट पीछे की ओर ले जाते हुए, आपका जो राइट फुट है वो जमीन के ऊपर है और इस स्थिति में श्वास भरते हुए रहना है। उसके बाद में कुंभक की स्थिति में श्वास को ना ऊपर हिसाना है, ना ज्यादा नीचे जाना है, मध्य स्थिति में कुंभक यानी कि श्वास को रोक के रखना है। इसके बाद में दोनों पैर के घुटने पहले टच करने हैं, फिर आपका चेस्ट और आपकी चीन दाढ़ी, और श्वास छोड़ते हुए स्थिति में आना है। यहां से पूरक श्वास भरते हुए पूरी श्वास भुजंगासन में। फिर भुद्रासन, आपका पैर दोनों पैर की एड़ी जो है वो एड़ी को पीछे टच करना है, दोनों पैर की एड़ी को नीचे करना है और आपका ध्यान घुटने की ओर, पैर लकड़ी के समान सीधे है। फिर राइट फुट श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए, दृष्टि ऊपर। इस स्थिति में, ये पूरक की स्थिति में आपको पैर आगे लेना है। फिर रेचक, फिर पूरक और रेचक। ये एक सूर्य नमस्कार हुआ। ऐसे सूर्य नमस्कार आप 8 से 10 कर सकते हो। हरिओम। आई थिंक यहाँ पे
हमारा जो सेशन है हम समाप्त करेंगे। ये Thank you. दूसरा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने जो योग के सेशन दोनों सेमिनार अपने वेबिनार अटेंड किए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जो लिंक है वो आपको भेज दी जाएगी और आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ आपका शरीर स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त और खुशी भरा माहौल में रहोगे। आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, कोविड से डर निकल जाएगा और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। थैंक यू। Thank you, मितेश भाई। रिक्वेस्ट एवरीवन टू, आपको जिसको इंटरेस्ट है कि रेगुलर ये योगा सेशंस होए और आपको पार्टिसिपेट करना है, तो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में सेंड कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं करण को, मेरे को, मिहिर को, आकाश को, या जिसके थ्रू आपको लिंक आया है, आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हम लोग एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, तो आपको रेगुलर अपडेट्स, कभी कभी सेशंस ऑर्गेनाइज होएगी, वो हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे। वी विल ट्राई कि इनफ पीपल आर मीर इंटरेस्टेड। यस मीर एक छोटा सा इंटरप्शन देता yes. हूँ। मीर प्लीज, आई एम ऑडिबल? yes ठीक। एक आपको और भी एक चीज बताता हूँ। मैं यंगस्टर के लिए, अगर मेरे पास 25 या 40 लोग होते हैं करीबन, मैं यंगस्टर के लिए एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो योग नहीं है मगर एक्सरसाइज है। उसके साथ में लास्ट में ध्यान करेंगे। मगर वो जो एक्सरसाइज है उसमें मेरा दावा है, मंथली अगर आप 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो वजन कम करना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपका 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। वो मगर फिजिकल एक्सरसाइज है, वो योग नहीं है। तो ऐसा भी एक सेशन अगर मीर सब लोग चाहेंगे तो आप लिख सकते हो कि भाई सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम और पसीना पूरा शरीर में से निकल जाएगा और एकदम तंदुरुस्त रहोगे। प्लीज मीर करिए। yes ऐसा yes सेशन so भी कर if सकते हैं। if अगर इनफ लोग इंटरेस्टेड है तो वी विल ट्राई ऑर्गेनाइजिंग दिस रेगुलरली, और आई थिंक डिजिटल इज द न्यू नॉर्म, और आगे जाके सब चीज ऑनलाइन होना ज्यादा ये बेनिफिशियल है सबको, मिनिमम कॉन्टैक्ट से। तो वी विल ट्राई के अगर लोग इनफ इंटरेस्टेड है तो वी विल ट्राई ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशंस रेगुलरली। तो शो सब, और कोई भी तरह से हम लोग का आपका नंबर दीजिए तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसमें ऑल योगा लवर्स विल बी एडेड, एंड वी कैन पोस्ट ऑल अपडेट्स, और कभी नेक्स्ट सेशन होने वाले उसका अपडेट्स आपको इजीली मिल पाए। Thank you all for the wonderful session and showing such a huge participation. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कोई पर्टिकुलर चीज पूछना है तो प्लीज डू आस्क। मितेश भाई इज हियर टू रिप्लाई। You can raise your hand or you can let me know. I will unmute you so you can talk directly. मितेश भाई, एक आई थिंक नलिन अंकल का एक सजेशन था। आप कोई नया आसन दिखा या फिर कोई ऐसी चीज दिखाए जो रेगुलर आप इतने सालों से आप कर रहे हो, तो उसके वो इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या आप यूनिक चीज कर रहे हो जो नॉर्मल मेरे जैसा इंसान नहीं करता था? सबसे तो पहले मैं नलिन भाई का भी प्रेमी हूँ, बहुत अच्छी शायरी कर लेते हैं। और मेरी आवाज पहुंच रही है? yes इट इज नलिन भाई भूता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। yes नलिन भाई का ये था। राइट। उनका क्या कहना है कि कोई ऐसा आसन कोई यूनिक जो आसन जो दिखा है आप, हर कोई जो कर आपकी सके, स्पेशलिटी है, जो रेगुलरली देखने को नहीं मिलता। रेगुलरली देखने को नहीं मिलती ऐसा। उसमें बहुत सारे आसन है, वो सब डेमो, मतलब अभी आज मैं करने को जाऊंगा तो मतलब एक चीज मैं कर सकता हूँ, मगर उसमें ये नलिन भाई ये बहुत ही श्रेष्ठ क्रिया है। आप अगर ये चाहे तो मैं ये क्रिया आपको बताऊंगा। शायद ये क्रिया अगर जो कोई कर लेता तो मैं बोलता हूँ जीवन में कोई पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी लाइफ टाइम नहीं आएगी। ये क्रिया है, यूनिक चीज है। नलिन भाई को भी आप जरा अनम्यूट कीजिएगा, डोंट माइंड। I don't know if Nalin is ठीक है। online, but I think he will see it later. तो ये है ना, ये कोई, मैं आज जो छोटा एक डेमो देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही उत्तम क्रिया है, मगर एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए, जिसको हम नवली बोलते हैं। नवली यानी कि पेट की आंतों को गोल गोल घुमाना। ये श्रेष्ठ क्रिया है। उड़ियान बंद करने के बाद ऐसा पेट को गोल गोल आंतों को घुमाया जाता है, फिर वाम नवली और दक्षिण नवली होती है।
मैं शरीर का प्रदर्शन नहीं करता हूँ, मगर मेरा टी शर्ट निकाल के मुझे ये नवली करनी पड़ेगी। मैं टी शर्ट निकाल के नवली करने से आपको पता चलेगा पेट के अवयव किस तरह से आपके मूवमेंट होते हैं। ये सिर्फ आपको एम्प्टी स्टमक, याद रखिएगा, ये नवली का जो आप प्रयोग है सिर्फ खाली पेट ही आपको करना है। स्टमक, आप टॉयलेट जाके आते हो उसके बाद में पेट खाली रहता है, पेट खाली होता है तभी ये नवली कर सकते हैं हम लोग। तो नवली को आज मैं बता दूं, यूनिक चीज है। नलिन भाई अगर शायद देख रहे हैं, मुझे पता नहीं, तो उनको ये क्रिया एवरी डे करनी है, एवरी डे। आई एम जस्ट, मेरा टी शर्ट निकाल के आपको बताऊंगा तो आपको शायद ये नवली की क्रिया सही समझ में आएगी। नहीं खालू ऊपर से नींद टूट गई। अरे करण, ये कोई देह का प्रदर्शन नहीं है, मगर ये क्रिया आप जरूर कीजिएगा। देखिए किस तरह से करना है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, खाली पेट, मैंने बताया कभी भी पेट भरे हुआ स्थिति में मत कीजिए। आपको थोड़ा कैमरा नीचे ले जाएंगे तो अपने आप पता चलेगा। देखिए मेरे को पहले श्वास भर रहा है, मैंने श्वास छोड़ते हुए झुकना है। फिर से एक बार बताता हूँ, पूरक, इससे नवली कहते हैं। पेट के हाथों को गोलाकार स्थिति में घुमाया जाता है। ये क्रिया आप उसके पहले रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए उड़ियान बंद करें। किस तरह से होता है उड़ियान बंद, देखिए पहले ये अभ्यास करें। इसके पहले पूरा रेचक, श्वास को बाहरी बार रोकना है। दोनों क्रिया में श्वास को बाहरी बार रेचक में रोकना है और पेट के इंटेस्टाइन को, पेट को अंदर खींचना है। और जब मूवमेंट कराने की बात होती है तभी भी, जब भी श्वास लेने की जरूरत पड़े उसी समय इमीडिएटली आपको नवली को छोड़ देना है। मगर श्वास को बाह्य कुंभक यानी कि श्वास को बाहर रोकते ही ये क्रिया की सकती है। और ये क्रिया करने के बाद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को आता है, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, ये प्रॉब्लम रेगुलर रूप से करोगे। और उसमें एक अग्निसार क्रिया होती है। ये अग्निसार क्रिया भी आपको मैं सिखाऊंगा अगली बार। अग्निसार क्रिया करने के बाद उड़ियान बंद अच्छा होता है, फिर वाम नवली, दक्षिण नवली, मध्य नवली और पूर्ण नवली। ये अभ्यास आप करेंगे तो पेट की आंतें आपकी बहुत ही इंटेस्टाइन क्लीन रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे और आपके सेहत के लिए अच्छा है। ये एक श्रेष्ठ क्रिया है जो मैंने बताया, जो हर आदमी कर सकता है प्रैक्टिस के बाद। यस, मोदी वर्षा जी आप म्यूट है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट है। અગ્નિસારની ક્રિયા કરવાની હોય, અગ્નિસારની એ ક્યારે કરી શકીએ? एम्प्टी स्टमक, आपको पेट खाली, जब हम लोग हिंदी में बोलूं चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, बेटर है हिंदी हाँ में? चलेगा। जब कोई अग्निसार क्रिया, उड़ियान बंद, जो उड़ियान बंद का मतलब था कि जो मैंने पेट को श्वास बाहर रोक के खींच के रखा, उसको उड़ियान बंद बोलते हैं। नवली जो की मैंने, वो भी श्वास को बाहर रोके ही, हर क्रिया जो है वो बाहर रखे। जो अग्निसार क्रिया में क्या होता है, मैं आपको छोटा देता हूँ कि श्वास को इस स्थिति में बैठे, श्वास को बाहर निकालना है पूरी तरह से और पेट की मूवमेंट करवानी है। श्वास पेट अंदर बाहर बैठ, ये पहले मूवमेंट जैसे जैसे आएगी ना आपकी पेट की मूवमेंट, तो धीरे धीरे उसके बाद में आपका उड़ियान आएगा। मगर एम्प्टी स्टमक, आपने खाना खाया हुआ है, आपने नाश्ता किया हुआ है, उस स्थिति में ये क्रिया नहीं कर सकते हो आप। एम्प्टी स्टमक, आपको जैसे सुबह में पेट साफ आ जाता है, उसके बाद में
इमीडिएटली अगर आप ये क्रिया कर लेते हो, या फिर 3 या 4 घंटे के बाद दोपहर के बाद जहाँ पेट आपका पूरी तरह से खाली आपको महसूस होता है, तभी आप ये कर सकते हो। रोज कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं ये सब, 100%। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका पेट की कोई भी बीमारी लाइफ टाइम नहीं आएगी। मतलब मगर कोई भी ये सीजन में कर अभ्यास, सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अग्निसार क्रिया अगर आप लिमिट से करते हो, 10-15 अग्निसार क्रिया कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा जिसको अभ्यास करना है अग्निसार क्रिया का, तो गर्मी के दिनों में ज्यादा मत करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। पराग भाई गांधी। Yes, thank you, sir. So Mitesh bhai, basically there is some issue with my mom. So actually उनको नी से लेके पैर की नी से लेके पंजे में कुछ तनाव है, और जब भी उनके पैर पे कोई पैर भी रख दे या टच भी कर दे, so she is like कि उनको बहुत पेन होता है. So is there any particular आसन for that? उनको क्या करना चाहिए, she should sleep back like this। उनको पैर की थोड़ी इस तरह से पैर को ऊपर उठाने की मूवमेंट करनी चाहिए, जितना होता है उतना। दिन भर में भी अगर वो बैठ सो सकती है, कभी अगर वो सो सकती है तो सो के करना चाहिए। पैरों की अप एंड डाउन मूवमेंट करनी चाहिए। फिर एक बार 1 बाय 1 पैर से अगर होता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों पैरों से थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करनी चाहिए, और उसको या फिर इससे पैरों को ऊपर रखेंगे, इस पोजीशन में रखते हैं तो उनकी जो अशुद्ध लोग जो वापस आना है हृदय की ओर, सर्कुलेटरी सिस्टम उनकी बेटर हो जाएगी। ये पूरे पंजे से लेके पूरे पैरों में उसमें जान आएगी, और ये रोज थोड़ी थोड़ी क्रिया आप करेंगे। फिर वो साइकिलिंग भी जो होती है तो धीरे धीरे साइकिलिंग भी करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। तो पैर में बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर होने से ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। साइकिलिंग बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए, आराम से इस तरह से साइकिलिंग चलाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे। ये साइकिलिंग की क्रिया करते रहेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो धीरे धीरे कमर से लेके पूरे पैरों में ताकत आएगी। Nikita has one question. Okay, what is the importance of using yoga mat? वो क्या उसका यूज करना चाहिए? योगा मैट्स का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे जो शरीर की ऊर्जा है, वो ऊर्जा अगर हम जमीन के ऊपर करेंगे तो वो जमीन है वो खींच लेती है। तो जो हमारे अंदर की ऊर्जा, योग करते समय आप इसके आसन के ऊपर बैठे हो तो ऊर्जा जमीन के ऊपर डायरेक्ट वो नहीं चली जाती है, ऊर्जा अंदर पड़ी रहती है। दूसरी चीज, कोई भी जैसे वज्रासन में बैठते हैं तो आपको जमीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं बैठना, घुटने में कोई तकलीफ आ सकती है। हर आसन में अगर आप कुछ ये सॉफ्ट मैट वगैरह है तो आप हमेशा आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। योग के आसन मैट के ऊपर ही करना चाहिए अपनी ऊर्जा को इंटेक रखने के लिए, और साथ साथ में आपके बॉडी के कोई पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैट के ऊपर ही करना चाहिए। यस, आई एम ऑडिबल? Yes, मेरी आवाज? yes. Next is Kalpesh bhai. Kalpesh bhai Walia, you are unmuted. यस कल्पेश। थैंक यू तेज भाई, वेरी अमेजिंग। हमें हमारा रामदेव बाबा चाहिए हमारा कांदिवली एसोसिएशन ना। थैंक्स अ लॉट। आपने अभी बताया मितेश भाई कि ये आसन एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, तो यानी मैं इतना पूछना चाहता था कि हम लोग को शवासन एम्प्टी स्टमक करना चाहिए कि कोई भी आसन का लिमिटेशन है ऐसा कुछ भी, या कोई नहीं, आसन? नहीं नहीं, ये खाली जो स्पेशली मैंने जो उड़ियान बंद बताया बहुत कम लोग कर पाएंगे, मगर वो प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज की, कि उसमें पहले श्वास को खाली बाहर रोक के पेट को अंदर खींचो। आप खाली यही करोगे ना कल्पेश भाई, पहले स्टार्टिंग में यही करो कि आप आगे झुको, आगे झुकने के बाद पेट को श्वास बाहर रोकते हुए खाली पेट को अंदर खींचिए। बस आप 10-15 दिन इसका अभ्यास करें, आपके पेट के स्नायु भी आपके नरम हो जाएंगे, अंदर के आपके इंटेस्टाइन से लेके आपके पेनक्रियास, लिवर, गोल ब्लैडर, हर पार्ट्स को पूरी तरह से व्यायाम मिलेगा। उसके बाद में अभ्यास बढ़ाने के लिए उड़ियान बंद कर सकते हैं। मगर आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि शवासन, शवासन तो श्रेष्ठ है। ये इतना तनाव भरी मुंबई की जिंदगी है, बिजनेस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, कोविड का स्ट्रेस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दिन में 10 मिनट रूम को बंद करके, मोबाइल को ऑफ करके, स्विच ऑफ करके, अगर आप शवासन की स्थिति में सो जाते हो और सेल्फ इंस्ट्रक्शन देते हो, मैं खुश हूँ, मैं निरोगी हूँ,
मैं तंदुरुस्त हूँ, ऐसी हर पॉजिटिव बातें आप सोचते हो, नॉर्मल श्वास के ऊपर ध्यान देते हो, आंखों के ऊपर अंधेरा भी होना चाहिए, और कितना आपको सुकून मिलेगा तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, और स्ट्रेस के होने से हर रोग दूर। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको शवासन तो कभी भी आप कर सकते हो, मतलब खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद कभी भी आप कर सकते हो शवासन, और शवासन से बहुत ही सुकून मिलेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आसन हम लोग कोई भी आसन समझो कि लिमिटेड खाना खा के या थोड़ा गैप रख के कर सकते हैं। आसन Right? लिमिटेड अगर खाना, आसन आपने दोपहर को समझो 2 बजे खाना खाया, तो आसन करना है तो उसके लिए 3 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए, कम से कम 3 से 3.5 घंटा आसन करने के लिए। जैसे ओके अलग अलग डिफरेंट आसन करते हो तो उसमें 3 से 3.5 घंटा चाहिए। आप आसन मत कीजिए, शवासन कर सकते हो। यानी एडवाइजेबल है कि खाली पेट करना चाहिए या मिनिमम गैप रख के करना हाँ, चाहिए? पेट भरा हुआ है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ा कम से कम 3 घंटे का आहार के बाद कर सकते हो। ओके। और ये सुबह में सांस का हल्का जो अपना नाश्ता किया है तो इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह में हल्का नाश्ता करके करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और आपने जो बोला सांस लेना छोड़ना, हम्म, कभी कभी उसमें हम लोग स्किप कर जाते हैं या उल्टा कर जाते हैं, तो उससे कुछ नुकसान होता है या वो उसका इफेक्टिव कम होता है, ऐसा कुछ है? जैसे मैंने लास्ट पहले सेशन में भी बताया था कि जो भी आगे झुकने वाले आसन है उसमें श्वास को छोड़ना ही चाहिए। जब आप आगे बेंड होते हो वो स्वाभाविक रूप से दिल में बैठ जाना चाहिए, और ऊपर उठते हो जब तो श्वास भरना है। हर स्थिति के अंदर जब झुका होगा तो श्वास छोड़ना है और ऊपर उठने में भरना है। मगर ये धीरे धीरे रिदम अगर आप अभ्यास करोगे ना तो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि साइकिल एक बार चलाना सीख गए तो सही चलती है, ऐसी ही मैं चीज बोलूंगा कि भाई एक बार आप श्वास रिदम सीख गए तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ऐसे ही चलेगी श्वास। ओके ओके, थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू। ओवर टू करण। વર્ષા જી હા મિતેશભાઈ, હાર્ટ નબળું હોય અને પમ્પિંગ બરાબર થતું ન હોય તો પ્રાણાયામ કરી શકીએ આપણે, અને કરવું હોય તો કયું પ્રાણાયામ કરાય? हार्ट नबड़ू है तो हिंदी में बताऊंगा। अगर आपका हार्ट कमजोर है तो आपको कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम नहीं करने चाहिए, जिसमें आपको झटका देना पड़ता है श्वास को फेंकने में, श्वास को भरने में। ऐसी प्रक्रिया नहीं करिएगा। आपका हार्ट कमजोर है, आप डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे इस तरह से बैठे, श्वास को धीरे धीरे लिया, चेस्ट के स्नायु को एक्सपांड किया, बस वो पंपिंग धीरे धीरे बढ़ेगा। मगर ये एकदम साहस प्राणायाम कीजिए आप, और ये अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, मगर कुंभक के साथ नहीं, यानी कि श्वास को रोकना नहीं है। हार्ट की तकलीफ वाले को श्वास रोकना नहीं है, श्वास खाली भरनी है, श्वास छोड़नी है, लंग्स को एक्सपांड करना है, छाती को, और धीरे से नीचे ले जाना है। आपको कुंभक के साथ नहीं करना है, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक के साथ स्वाभाविक आप प्राणायाम कुर्सी पे बैठ के करोगे, आपकी हार्ट की पंपिंग की कोई भी प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे आपकी स्वस्थता बढ़ेगी फेफड़ों की, और आपकी हार्ट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मगर जबरदस्ती वाला प्राणायाम मत करें, फोर्सफुली जो भस्त्रिका कपालभाति होता है वो मत करें। और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, मगर हर एक्सरसाइज में सरलता। मैंने जैसे लास्ट बताया था जानु शीरासन, तो बस इतना किया, आप इतना खाली झुकते हो, आपके चेहरे के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ऐसे आसन करे, लाभ उतना ही मिलेगा। अब मेरा सर पूरा जमीन यहाँ पे लगे या नहीं लगे, उतना ही लाभ मिलेगा। तो आप वो टेंशन मत ले कि मैं इतना झुक सकती हूँ, मैं इतना झुक सकती हूँ। आपको शरीर के हर पार्ट्स को व्यायाम मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा झुकने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप करें हल्का इसे, और चेहरे के ऊपर खुशी, आनंद, तनाव मुक्त शरीर, इस तरह से जानु शीरासन, पश्चिमोत्तान पहला सेशन जो किया था ऐसे। थैंक यू सो मच। Last question, Mitesh bhai, from Disha. She's asking while doing asan, sometimes her back is when I tend to bend my back while I try to do asan. Is it necessary that our back has to be erect? Repeat karo, please don't mind. I tend to bend my back while I try to do asan. Is it necessary to keep our back straight? इसमें आई वुड लाइक टू से कि अगर फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन कर, इफ यू आर डूइंग फॉरवर्ड बेंडिंग आसन,
you are doing forward bending and you need to bend your back, or you have to bend your back. वो एक तो कंपलसरी है कि आपको झुकने के लिए, मगर आपका प्रश्न मुझे अगर is it necessary to bend, you would like to ask, is it necessary to bend or Mitesh what? bhai, you can personally explain it to her when you come down. Yeah. That is okay. I think those are all the questions for today. I don't think anyone else has any question. It's okay. It was a good session. Thank you, Mitesh bhai. We will. There is a lot of interest from Thank you, people everyone. to repeat and join the yoga sessions regularly. So we will consider doing that eventually, with your permission. Thank you, everybody. Thank you very much for giving very good support. Thank you very much. भगवान आपकी लंबी आयुष्य दे, आपको सुख और समृद्धि दे, और आप निरोगी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो, ऐसी मनोकामना ईश्वर को करता हूँ. थैंक यू. We are ending the session right now today. Thank you.